Example 1.4. Student, I don't read the question from the textbook, but I explain you. There are two charged particles. One is a electron, second is a proton. Now certain informations are given to us. Charge of electron and charge of proton have a magnitude 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Universal constant of gravitation, electrostatic constant, mass of proton, mass of electron. You must remember these values. Distance will be given 1 angstrom. It is converted into the meter. Now we have to determine the ratio of magnitude of electrostatic force and the gravitational force for electron and proton and for two protons when they are at a distance of 1 angstrom. ठीक है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्वेश्चन 1 में जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम है, तब उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, तो दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड का रेशियो डिटरमाइन करना है. सिमिलरली जब दो प्रोटॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पर है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का भी रेशियो फाइंड करना है. ठीक है, ये क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो क्वेश्चन ए, फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, सो Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, फॉर्मूला है 1/4πε0 E²/r². और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा Fg इज इक्वल टू G_mp/r². सो देयरफॉर Fe/Fg मैग्नीट्यूड, यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों मैग्नीट्यूड ही है. सो 1/4πε0 E²/r² G_mep/r². So r² will be cancelled. So this is 1/4πε0 E² divided by G_me into mp. Substituting all the values here, 1/4πε0 is 9 into 10 raised to 9. E is 1.6 into 10 raised to minus 19 square divided by capital G 6.67 into 10 raised to minus 11. Mass of electron 9.1 into 10 raised to minus 31. Mass of proton is 1.67 into 10 raised to minus 27. Now we have to solve this. Here is my calculator. 9 into 1.6 into 1.6 divide by 6.67 divide by 9.1 divide by 1.67. So this is 0.2272 into 10 raised to, ये 9, ये माइनस 19 का स्क्वायर 38, माइनस 38 माइनस 11 का प्लस 11 हो जाएगा, माइनस 31 का प्लस 31 न्यूमरेटर में जाएगा और माइनस 27 का प्लस 27. सो दिस इज 0.2272 इंटू 10 रेज टू, ओके, 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 31 51, 51 प्लस 20 71 और 7 78. 78 में से 38 को माइनस करो तो 40 आएगा, 40. So this is equal to 2.272. यहाँ पर हमने एक डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट किया, मतलब इसको इंक्रीज किया, तो इसको डिक्रीज करना पड़ेगा 39. सो
Fe upon Fg, this much Newton. 2.272 into 10⁻39 Newton. Okay, according to the textbook, this answer is correct. Now, in the next question, we have to find the same ratio for the two protons. So, number 2, for two proton. Okay, so student, where will be the difference? See, Fe upon Fg, Fe upon Fg, यहाँ पर 1/4πε0 आएगा, यहाँ E² आएगा, यहाँ G आएगा, पर यहाँ पर दोनों प्रोटॉन है तो यहाँ पर Me के प्लेस पर Mp आएगा. सो हियर यू कैन राइट Mp². सो 1/4πε0 into E² divide by G Mp. So again you can substitute the values. 1/4πε0 E² upon G Mp². So substitute all the values. I am not doing that, okay, otherwise video will be very longer. So substituting all the values, you can get the answer, and that answer comes out to be 1.3 into 10⁻36. 1.3 10⁻36 Newton. You can verify this answer yourself, okay. I have not calculated, I have just copied from the textbook. So this part we have finished out. Now question B, determine the acceleration of electron and proton. Now in the next question, we have to determine the acceleration of electron and proton when electron and proton are at a distance of 1 angstrom. So first we have to find the electrostatic force between the electron and proton when they are at 1 angstrom distance. So F electrostatic force between E and P. So F is equal to 1/4πε0 Q1 Q2, but Q1 Q2 दोनों E होंगे. So E upon R², 1/4πε0 E² upon R². So F is equal to 1/4πε0 is 9 into 10⁻9. E की वैल्यू है 1.6 into 10⁻⁻19 का स्क्वायर. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस है 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 का स्क्वायर. ओके, 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर, आई थिंक 256 होता होगा, मतलब 2.56, 1.6 यस 2.56 इंटू 10⁻9 माइनस 10⁻⁻19 का स्क्वायर -38, ये -20 होगा, ऊपर जाएगा +20. 2.56 इंटू 9 आई थिंक 14.4. 2.56 into 9, sorry, 23.04. 23.04 into 10⁻20 plus 9, 29. 29 minus 38. So this is -9.
Newton. Okay, you can write this as 2.30 into 10 raised to minus 10 Newton. If I just confirm the answer if I have written, no, I have not done it. Anyway, F equal to 2.30 into 10 raised to minus 10 Newton. Now we have to find the acceleration. So AE, acceleration of electron. Acceleration of electron is force between the electron and proton and mass of electron. So 2.3 into 10 raised to minus 10 डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 10 रेज टू माइनस 31. 2.3 डिवाइड बाय 9.1 0.2527 2527 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 प्लस 31 मतलब 21. So this is 2.52 into 10 raised to 20 meter per second square. This is the acceleration of electron. You just confirm this answer. Similarly, acceleration of proton AP, force divided by mass of proton. So force is 2.3 into 10 raised to minus 10 divided by mass of proton 1.67 into 10 raised to minus 27. So 2.3 divided by 1.67 1.377 into 10 raised to 17 meter per second square. You calculate the answer yourself and just verify. Student, here there is a small mistake in shifting of the power. This is 23.04 into 10 raised to minus 9. I have decreased this. 23 का मैंने 2.3 कर दिया. एक डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ, इसको डिक्रीज किया है तो इसको इंक्रीज करना पड़ेगा. तो ये होगा -8, राइट. सो यहाँ पर भी चेंज आएगा, यहाँ -8 आएगा और यहाँ पर भी चेंज आएगा. सो यू कैन मेक दैट चेंज. (23) और यहाँ पर 2.52 22, राइट. ओके, देन यहाँ पर 2.3 इंटू 10 रेज़ टू -8 है तो यहाँ आएगा -8. ओके, 2.3 by 1.67 इज ओके. हियर अगेन देयर विल बी अ चेंज. -8 है तो कितना आएगा 19 आएगा. 19. I just go through the answer. Yes, here also it is 19. So टेक्स्ट में इसका 1.4 करके लिखा हुआ है. ओके, सो वी हैव सॉल्व दिस एग्जाम्पल 1.4.
Example 1.5. I explain you the example. Student, there is a charged metal sphere which is suspended by the nylon thread. There is another charged sphere B which is held by the insulating handle. You can refer the textbook figure. These two spheres are kept at a distance of 10 सेंटीमीटर. ठीक है, दो स्फीयर है, एक स्फीयर ए है उसको नायलॉन के थ्रेड से सस्पेंड किया है, एक स्फीयर बी है उसको इंसुलेटिंग हैंडल से, यहाँ पर एक हैंडल है और हैंडल से पकड़ के रखा है. ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है. द फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस इज कैलकुलेटेड. सपोज दैट फोर्स is capital F. Now what is done? A is made in contact with a neutral sphere C. A को C के साथ कांटेक्ट कराया, पर ये जो C है वो इनिशियली न्यूट्रल है, वो चार्ज नहीं है. Similarly, this B is also made in contact with another identical neutral sphere D. स्फीयर ए स्फीयर बी दोनों आइडेंटिकल है मतलब उनकी साइजेस सेम है पर उनके चार्जेस अलग अलग है. इसके ऊपर ए के ऊपर सपोज Q1 चार्ज है, बी के ऊपर Q2 चार्ज है. ठीक है, अब ए को सी के साथ कांटेक्ट कराया. अब ये जो सी है ना वो इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, आइडेंटिकल है, मतलब ए और सी की साइज सेम है. ए के ऊपर कितना चार्ज है Q1, सी के ऊपर इनिशियली कितना चार्ज है 0, वो न्यूट्रल है. सी को ए के साथ कांटेक्ट कराया. बिल्कुल वैसे ही डी भी इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. बी के ऊपर Q2 चार्ज है, डी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, डी को बी के साथ कांटेक्ट कराया. नाउ स्टूडेंट, हियर यू रिमेंबर अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. स्फीयर ए चार्ज है, उसके ऊपर Q1 चार्ज है. स्फीयर सी न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट दोनों आइडेंटिकल है, मतलब दोनों की साइज सेम है. तो जब आप ए और सी का कांटेक्ट कराओगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज का डिवीज़न होगा. और जब आप उनको सेपरेट कराओगे, ए और सी को सेपरेट कराओगे, तो सेपरेट करने के बाद दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज होगा. ठीक है, तो पहले ए के ऊपर Q1 चार्ज है, सी के ऊपर 0 चार्ज है. नाउ सेपरेट करने के बाद उनके ऊपर कितना चार्ज होगा, Q1 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू Q1 बाई 2. मतलब ए के ऊपर अब होगा Q1 चार्ज, सॉरी ए के ऊपर अब होगा Q1 बाई 2 चार्ज और सी के ऊपर भी होगा Q1 बाई 2 चार्ज. पहले ए के ऊपर Q1 था, अब सी के साथ उसको टच करवाया और सेपरेट करने के बाद ए के ऊपर चार्ज होगा Q1 बाई 2. बिल्कुल वैसे ही बी के ऊपर Q2 चार्ज है, इनिशियली डी के ऊपर 0 चार्ज है, डी को बी से टच कराया. जब बी और डी को सेपरेट करेंगे तो फिर बी और डी दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज होगा और दोनों के ऊपर कितना चार्ज होगा, Q2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू Q2 बाई 2. Q2 इज अ चार्ज ऑफ D, 0 इज अ चार्ज ऑफ D, तो टोटल चार्ज है Q2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2. डिवाइड बाई 2 इसके लिए क्योंकि चार्ज दोनों में आधा आधा डिवाइड हो जाएगा. तो दोनों को सेपरेट करने के बाद B के ऊपर होगा Q2 बाई 2, D के ऊपर भी होगा Q2 बाई 2. तो ये हमारा A है, A के ऊपर कितना चार्ज है Q1 बाई 2, A के ऊपर Q1 बाई 2, B के ऊपर Q2 बाई 2. ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ वी कैलकुलेट इनिशियल फोर्स बिटवीन ए एंड बी. इनिशियली फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2. Q1 एंड Q2 या तो फिर ए एंड बी भी लिख सकते हैं. ठीक है, आई राइट हियर इनिशियली फोर्स बिटवीन ए एंड बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है.
फॉर्मूला में मैं आर ही रखूँगा. सो एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. नाउ फाइनली मतलब ए को सी से सेपरेट किया, बी को डी से सेपरेट किया और फिर ए और बी को 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर अरेंज किया. तो फाइनली उनके बीच में फोर्स लगेगा एफ डैश इज इक्वल टू 1/4πε0. Q1 के प्लेस पर ए का चार्ज आएगा Q1/2, Q2 का बी का चार्ज होगा Q2/2 डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है. आई विल नॉट राइट 5. मैंने फर्स्ट सिचुएशन में आर लिखा था क्योंकि 10 था, ठीक है, 10 के प्लेस पर आर लिखा था. अब 5 है तो 5 10 का हाफ है. सो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ये जो आर डैश है ना, आर डैश को मैं लिखूंगा r/2. सो हियर इट इज r/2 का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पर भी डिस्टेंस का स्क्वायर आता है, यहाँ डिस्टेंस r/2 है. सो एफ डैश इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/4 डिवाइड बाय r²/4. सो ये 4 और ये 4 कैंसल हो जाएगा. सो एफ डैश इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r². वी हैव दिस. सो ये F इनिशियल फोर्स बिटवीन A एंड B, इक्वेशन 1. ये फाइनल फोर्स बिटवीन A एंड B, इक्वेशन 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 F dash is equal to F. That means the force between A and B will not change. Student, here there is a very important point that I tell you कि यहाँ पर स्फीयर A और स्फीयर B दोनों आइडेंटिकल है, C और D भी आइडेंटिकल है. इन शॉर्ट यहाँ पर जो चारों स्फीयर A B C D आइडेंटिकल है. जब भी दो आइडेंटिकल स्फीयर को एक दूसरे से टच करके सेपरेट करते हैं तो उनका चार्ज इक्वली डिवाइड होता है. तो A के ऊपर पहले Q1 चार्ज था, C के ऊपर 0 चार्ज था. सेपरेट करने के बाद A और C दोनों के ऊपर ये जो टोटल चार्ज था उसका आधा आधा होगा. पर मान लो कि A और C की साइज डिफरेंट है और उनको टच करके अगर सेपरेट करते हैं देन द चार्ज विल नॉट बी Q1/2, चार्ज विल बी डिफरेंट. अब वो कितना होगा वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर में. ओके, सो हियर द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस डज नॉट चेंजेस. प्लीज नोट डाउन दिस. एक्सरसाइज 1.1, very simple question students. There are two charged spheres. One is having this much charge, second is having this much charge. They are separated by 30 सेंटीमीटर apart in air. उनके बीच में एयर है. स्टूडेंट, एयर एंड वैक्यूम दोनों के लिए 1/4πε0 ही आता है. ठीक है, वी वॉन्ट टू फाइंड द फोर्स बिटवीन these two charges. ओके, यहाँ पर ये 30 सेंटीमीटर है, ये दोनों SI है, ये CGS है. सो 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो 30 इंटू 10⁻² मीटर. आई विल राइट इट एज 3 इंटू 10⁻1 मीटर. ओके, सो वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन these two charges. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय r². 1/4πε0 is 9 into 10⁻⁹. Q1 Q2
2 into 10 raised to minus 7, 3 into 10 raised to minus 7 डिवाइड बाय 3 into 10 raised to minus 1 का स्क्वायर. So this is 9 into 2 into 3 10 raised to 9 minus 7 डिवाइड बाय ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, 10 raised to minus 1 का स्क्वायर होता है -2. सो दिस इज ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा. 3 into 2 is 6. So 6 into 10 raised to 9 minus 14 minus 5 divide by 10 raised to minus 2. So this is 6 into 10 raised to minus 5 plus 2. So F is equal to 6 into 10 raised to minus 3 Newton. This is the force. Okay. Now here not mentioned, but here you assume plus, here you assume plus. So both are like charges, and between the like charges there is a repulsive force. So F is equal to 6 into 10 raised to minus 3 Newton, and in a bracket you write repulsive force. Please note down this. Exercise 1.2. It is also very simple. The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8, it is microcoulomb, minus 0.8 into 10 raised to minus 6 coulomb in a air 0.2 Newton. F equal to 0.2 Newton. What is the distance between the two spheres? Question A. R, distance between the two spheres we want to determine. What is the force on second sphere due to the first? Question B, force on second due to first. How we will denote it? F21, right? What is the force on second sphere due to the first? Okay. Now student, there are two charges. One is a 0.5 माइक्रोकूलम, जिसको मैंने कूलम में कन्वर्ट कर दिया. ये नेसेसरी है. इलेक्ट्रिसिटी में हमेशा क्वांटिटीज़ SI में ही होनी चाहिए, MKS में ही होनी चाहिए. Q2 को भी मैंने SI में कन्वर्ट कर दिया है. यहाँ पर माइनस साइन है. दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन. वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. ओके, सो हियर आई राइट electrostatic force F21 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 divide by R square. So R square, because we want to find R, so R square को subject of equation बनाया. 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon F21. 1/4 pi epsilon 0 is 9 into 10 raised to 9 Q1 Q2. So 0.4 10 raised to minus 6. Q2 नेगेटिव है, बट जब हम स्केलर फॉर्म में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो Q2 को भी पॉजिटिव ही लेना है. 0.8 10 raised to minus 6 डिवाइड बाय फोर्स. फोर्स कितना है? 0.2.
So this is 9 into 10 raised to 9, 4 into 10 raised to minus 7. ये 0.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 को मैंने 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 किया. सिमिलरली 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 और डिवाइड बाय 0.2 को 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 1. ओके, नाउ 8/2, ये 8 को 2 से डिवाइड करो, 4 आएगा. 4 इंटू 4 16 होगा और 16 इंटू 9 144. So 144 into 10 raised to 9 minus 7 minus 7 plus 1. So this is 144 into 10 raised to, ये 9 और 1 plus 1 10 और 10 minus 14, 10 minus 14, okay, 10 minus 14. So 144 into 10 raised to minus 4. This is what? R square. So R is equal to 144 का square root 12, 10 raised to minus 4 का 10 raised to minus 2. So therefore R is equal to 0.12 meter. So this is the distance between the two charges. Okay, तो ये हमने कैलकुलेट किया. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये जो फोर्स दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, दैट इज द फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ 0.4. मतलब इसके ऊपर इससे है, 1 के ऊपर 2 से है. सो दिस इज F12. ओके, दैट वाज अ वेरी माइनर मिस्टेक. ठीक है, ये जो फोर्स दिया हुआ है ये है ऑन स्मॉल स्फीयर, मतलब 0.4 माइक्रोकुलम ड्यू टू दिस 0.8 माइक्रोकुलम. फिर क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, मतलब ये जो सेकंड है उसके ऊपर फर्स्ट से कितना लगेगा. तो दिस वाज द क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन बी. F21 स्टूडेंट, वेरी सिंपल. कूलम लॉ में फर्स्ट स्फीयर के ऊपर, मतलब फर्स्ट चार्ज के ऊपर सेकंड चार्ज से जितना फोर्स लगता है उतना ही फोर्स सेकंड के ऊपर फर्स्ट से भी लगता है. तो फर्स्ट के ऊपर सेकंड से फोर्स है 0.2 न्यूटन, तो सेकंड के ऊपर फर्स्ट से भी जो फोर्स लगेगा वो भी होगा 0.2 न्यूटन. नाउ हियर एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो F12 और F21 दोनों ही फोर्स कैसे होंगे? दोनों ही फोर्स एट्रैक्टिव टाइप के होंगे, राइट ना, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है. तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो एट्रैक्टिव फोर्स. ओके, सो यू कैन नोट डाउन दिस सॉल्यूशन.